Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Journey Towards Mythology Part 2. In the first video, we have already discussed some very important mythological and legendary characters जो हम बार बार लिटरेचर में देखते हैं. तो आज इसका सेकेंड पार्ट है. Today we will discuss 15 very important characters and events from. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Vrishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 3 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 1 year of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners. Okay, तो चलो हम start करते हैं आज का session. And this is our first figure जो हम discuss करने जा रहे हैं, Saint Andrew. बाइबल में कई सारे इंपॉर्टेंट सेंट्स का नाम हमें देखने को मिलता है जिनमें से सबसे ज्यादा यूज होता है सेंट एंड्रयू का नाम. यू हैव आल्सो रेड इट इन योर वेरियस लिटरेरी टेक्स्ट एज ए रेफरेंस. तो सेंट एंड्रयू, दिस इज द इमेज ऑफ सेंट एंड्रयू. आप देख रहे हो क्रॉस लेकर वो खड़े हैं, सेंट एंड्रयू. तो ही वाज एक्चुअली द ब्रदर ऑफ सेंट पीटर. जो जीसस का डिसाइपल है उसमें से सेंट पीटर का नाम आता है. सो पीटर का भाई है सेंट एंड्रयू. एंड ये एंड्रयू जो नेम है, दिस नेम मीन्स मैनली, masculinity. This name means manly. Okay, so that is the meaning of the name Andrew. And why is he important? He is considered as the first missionary because he brought his brother Peter to meet Jesus. तो इसलिए उनको फर्स्ट मिशनरी माना जाता है. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने भाई पीटर को जीसस के पास लेकर आया था. सो द फर्स्ट मिशनरी हु टुक पीटर टू जीसस. एंड इसके थ्रू वो क्या किया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी का जो एक्सपेंशन है, क्रिश्चियनिटी को उन्होंने एक्सपैंड किया. सो दैट इज व्हाई ही वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट मिशनरी. उसके बाद कई सारे मिशनरीज आए हैं, इंडिया में भी आए हैं. यू ऑल नो, read in English in India portion that missionaries came and established so many important universities, schools, colleges जिससे English education flourish हुआ था इंडिया. Right, so Baptist missionaries हम उसको कहते हैं. So he was the first missionary because he brought his brother Peter to meet Jesus. Now और क्या है उसके बारे में, his name was mentioned in the New Testament. You all know that Christian Bible is divided into two parts, Old Testament and New Testament. तो न्यू टेस्टामेंट में इसका नेम मेंशन सेंट एंड्रयू का. एंड ही इज पोर्ट्रेड एज एन ओल्ड मैन विथ व्हाइट बियर्ड. इस इमेज में भी देखो वही चीज है, एन ओल्ड मैन विथ व्हाइट बियर्ड. यही सेंट एंड्रयू का है. ज्यादातर बुक्स में, ज्यादातर इमेजेस में उनको इसी तरह दिखाया गया. ठीक है, सो दैट इज अबाउट सेंट एंड्रयू. जस्ट एक ब्रीफ आइडिया रखना कैरेक्टर्स के बारे में. मैं उसी फिगर्स को यहाँ पर आपको बता रही हूँ जो जिसके बारे में हम लिटरेचर में पढ़ते हैं, जिसका नाम हमने सुना है बट उसके बारे में ज्यादातर हमें नहीं पता. so that is why I am bringing this video series for you. so first part भी आप देख लेना जो भी इस चैनल में हो. okay, now next character में आते हैं अफ्रोडाइट, a very beautiful goddess. You can see in the image also Aphrodite. and इसका नेम भी बहुत बार है लिटरेचर में. बेसिकली क्लासिकल लिटरेचर में अफ्रोडाइट का नाम हमें देखने को मिलता है. तो हु वाज अफ्रोडाइट? शी वाज अ गॉडेस. एंड बेसिकली वो किसका गॉडेस है? गॉडेस ऑफ सेंसुअल लव. वेरी इंटरेस्टिंग. गॉडेस ऑफ सेंसुअल लव एंड इरोटिसिज्म. ठीक है, अफ्रोडाइट इज द गॉडेस ऑफ दैट. नाउ अफ्रोडाइट ये जो नेम है, वेरी इंटरेस्टिंग नेम का मीनिंग है. द नेम मीन्स फोम बॉर्न. सॉरी, द नेम मीन्स फोम बॉर्न. फोम से जिसका बर्थ हुआ है, फोम बॉर्न. So basically, she was the daughter of Zeus and Dione. And in some other version of the story, ये कहा जाता है कि she was born out of the foam of the sea, where severed genitals of Uranus were cast into.
ये एक बर्थ स्टोरी है, ये दोनों बर्थ स्टोरी उसके लिए माना जाता है। एक वर्शन में कहता है शी वॉज द डॉटर ऑफ ज्यूस एंड डायोन, दूसरे वर्शन में कहा जाता है कि शी वॉज बोर्न आउट ऑफ अ सी फोम, एंड उस सी में क्या था, सीवियर जेनिटल्स ऑफ यूरेनस, उस जेनिटल से अफ्रोडाइट का बर्थ हुआ था, दैट इज व्हाई शी वाज द गॉडेस ऑफ सेंसुअल लव और इरोटिसिज्म। शी वाज द मदर ऑफ एनियस, जो कि फेमस हीरो है वर्जिल्स एनीट, हमने पहले क्लास में एनीट के बारे में पढ़ा था, एनियस के बारे में पढ़ा था। तो शी वाज द मदर ऑफ एनियस, ये माना जाता है। एंड अगर हम इस मिथ को देखें कि शी वाज द डॉटर ऑफ ज्यूस एंड डायोन, तो उसमें ये भी कहा जाता है कि हाउ शी बिकेम द गॉडेस ऑफ इरोटिसिज्म और सेंसुअल लव। So basically, Zeus gave her the power to unite with any mortal men and produce child. ये उसके पास एक magical power था कि she can bring child or she can produce child by uniting with any mortal man. So basically, she was the goddess, and अगर वो कोई human beings के साथ, कोई male के साथ वो अपना union बनाए, so she can produce child at any circumstances. So that was the power given by Zeus to her. So that is why she was the goddess of sensual love. And again, I am showing this is the image of Aphrodite, very beautiful goddess. Okay. नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज अपोलो, वेरी फेमस नेम, बहुत बार आपने सुना है लिटरेचर में, मिथ में। तो दिस इज अपोलो। अपोलो का कई सारे पर्सनालिटीज है, तो बेसिकली दिस इज द इमेज जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अपोलो, हु वाज अपोलो, यू ऑल हैव हर्ड हिज नेम, द नेम एक्चुअली मीन्स डिस्ट्रॉयर। अपोलो नेम का जो मीनिंग है दैट मीन्स डिस्ट्रॉयर। ही वाज आल्सो द सन ऑफ ज्यूस, ज्यूस एंड लेटो का सन है। And he was the brother of Artemis. Artemis का नाम आपने सुना है, he was the brother of Artemis. And basically Apollo, in some earlier version of myth, Greek myth, Apollo was portrayed as a protector of flocks and herds. तो basically pastoral god थे वो, ठीक है। कुछ वर्षन में माना जाता है ही वॉज अ पैस्टोरल गॉड, एंड और भी कई सारे उसके पर्सनालिटीज है। ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ म्यूजिक, पोएट्री, फिलोसॉफी एंड प्रोफेसी, वो इनका भी गॉड है, ठीक है। तो उनके कई सारे पर्सनालिटीज है। ही वॉज अ डायनामिक गॉड, एक्चुअली बहुत सारी चीजों का वो गॉड है। तो इन सम अर्लियर वर्जन इट वाज कंसिडर्ड दैट ही वाज द प्रोटेक्टर ऑफ फ्लॉक्स एंड हार्ट्स, व्हिच ही वाज अ पैस्टोरल गॉड। बाद में इसको माना जाता है, मतलब दूसरे वर्षन में माना जाता है कि नॉट ओनली पैस्टोरल, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद म्यूजिक, पोएट्री एंड ऑल द अदर एस्थेटिक थिंग्स। जिस चीज को हम एस्थेटिकली ब्यूटीफुल मानते हैं, जो एस्थेटिक्स का पार्ट है, वो सारे के सारे चीज का गॉड है एपोलो। एंड कुछ जगह में एपोलो इज आल्सो कंसिडर्ड एज सन गॉड, एपोलो को सन गॉड भी माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अपोलो का बर्थ हिस्ट्री क्या है, एन आइलैंड नेम्ड डेलोस वाज स्पेशली बिल्ड फॉर द बर्थ ऑफ अपोलो, ये ज्यूस ने बनवाया था, ठीक है। तो ज्यूस बिल्ट एन आइलैंड नेम्ड डेलोस, इट वाज अ मैजिकल आइलैंड, and it was specially built for the birth of Apollo, very special person, right? And Apollo had numerous love affairs with both men and women. So he was a god, obviously, but he was a very controversial figure. कई सारे उनके रिलेशनशिप्स थे जिसके बारे में आप मिथ्स में पढ़ते हो, ग्रीक लिटरेचर में ज्यादातर पढ़ते हो। So that is Apollo. This is the image of Apollo. You can see a very bold figure, divine figure. Okay. तो ये अपोलो की बात। नाउ नेक्स्ट में हम आते हैं एपोलियन। एपोलियन, तो अपोलो इज द गॉड, बट एपोलियन इज एक्चुअली अ मॉन्स्टर। यहाँ पर इमेज में ही आप देख रहे हो, इज अ वेरी हॉरिबल, हॉरिड लुकिंग फिगर। दिस इज एपोलोनियन। तो एपोलोनियन कौन है? द नेम ऑल्सो मीन्स डिस्ट्रॉयर, ऑब्वियसली अपोलो से आया है एपोलोनियन, सो डिस्ट्रॉयर ही मीनिंग है नेम का। एंड दूसरे वर्षन में कहा जाता है द नेम केम फ्रॉम द हिब्रू वर्ड एबाडोन। एबाडोन was the origin of this word, and Abaddon actually means land of the dead. That is why he was a monster. ओके, एक्चुअली मॉन्स्टर हम उसको कह रहे हैं, बट एक्चुअली वो मॉन्स्टर नहीं है, ही वाज एक्चुअली एन एंजल ऑफ द बॉटमलेस पिट। बॉटमलेस पिट क्या है? इट वाज रेफर्ड इन पैराडाइज लॉस्ट आल्सो, दिस फ्रेज इट रेफर्स टू हेल।
तो बॉटमलेस पिट वो हेल का एंजल है, विच मीन्स ही वॉज अ मॉन्स्टर, बट उनको मॉन्स्टर नहीं कहा गया है, ही वॉज द एंजल ऑफ हेल, वो हेल का एंजल, ठीक है। तो Apollonian was his name, a very powerful figure, and Milton uses the name in Paradise Regained. Paradise Lost का जो sequel है Paradise Regained, उसमें mention है Apollonian का नाम, and he was described as the angel of bottom pit. Okay, so that is about Apollonian. Okay, now next character पे next नेम पे आते हैं, दैट इज आर्केडिया। बहुत ही फेमस वर्क है बाय फिलिप सिडनी, यू ऑल नो। नाउ व्हाट इज आर्केडिया एक्चुअली? इट वाज अ प्लेस, वाज अ काइंड ऑफ यूटोपियन प्लेस। तो यहाँ पर आप इमेज देख रहे हो, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ पर माउंटेन्स है, ट्रीज है, वेरी काम एंड कूल एटमोस्फियर, जहाँ पर मतलब नेचर इज प्रेजेंटेड ऑलमोस्ट लाइक गॉड, राइट? So very peaceful and very pastoral place is Arcadia, and Sydney का ये जो work है Arcadia, that is also a pastoral work, right? तो Arcadia के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। Actually the name Arcadia means beer country. Exact meaning है इसका beer country. Actually it was a mountainous region in Peloponnesus. Peloponnesus में ये actually एक region है, माना जाता है। And Arcadia, the name actually came from Arcas, who was the king of Arcadia. राजा का नाम से ही जगह का नाम है Arcadia. And it was portrayed as an ideal state by Theocritus and Virgil. Virgil, Theocritus, you all have heard these. So the very famous poets जिन्होंने इसके बारे में लिखा था, and it was portrayed as an ideal state like utopia. जैसे थॉमस मूर ने बताया था यूटोपिया एज एन आइडियल स्टेट, वैसे ही थियोक्रिटस एंड वर्जिल ने आर्केडिया को बताया था एज एन आइडियल स्टेट फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कामनेस एंड पीसफुलनेस। ओके, so this is the image of Arcadia. Now next point पे आते हैं, next term पे, that is Ariel. Very very popular name in history and also in literature, राइट? एरियल का नाम बहुत बार कई सारे लिटरेरी वर्क्स में आपको देखने को मिलेगा। एरियल इज ऑल्सो मेंशन्ड इन रेप ऑफ द लॉक, एरियल इज मेंशन्ड इन द टेम्पेस्ट, राइट? तो एरियल सिल्विया प्लैथ का पोएट्री कलेक्शन का भी नाम है, तो कई सारे नाम आपको मिलेगा। सो एक्चुअली एरियल है कौन? यहाँ पर इमेज में आप देख रहे हो, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल जिसके पास विंग्स है, तो वो उड़कर जा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एन इमेज वाज एरियल। Now, Ariel के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। The name actually means lion of God. Very masculine name, Ariel. Okay, and in myth, it was considered as a symbolical name for Jerusalem. Actually, ये एक place का नाम माना जाता है। Jerusalem का एक symbolic नाम है Ariel. But in medieval literature, इसके कई सारे मतलब इंटरप्रिटेशन है एरियल का। इन medieval literature, एरियल इज द वाटर स्पिरिट। ये माना जाता है कि वो पानी का स्पिरिट है, ठीक है, वो पानी का स्पिरिट है। ओके, एरियल इज द वाटर स्पिरिट। नाउ इन द टेम्पेस्ट, शेक्सपियर प्रेजेंट्स एरियल एज एन एयर स्पिरिट, ठीक है। टेम्पेस्ट आप सबने पढ़ा है, वहां पर एरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल है। सो एरियल वाज प्रेजेंटेड एज एन एयर स्पिरिट। रेप ऑफ द लॉक में पोप ने पोर्ट्रे किया था एरियल को इन अ वेरी फनी मैनर, हु वाज द गार्जियन सिल्फ ऑफ बेलिंडा, एंड एरियल वाज एक्चुअली द हेड ऑफ ऑल द सिल्फ्स। तो उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू प्रोटेक्ट बेलिंडास चेस्टिटी। ओके, सो एरियल इज अ सिल्फ इन रेप ऑफ द लॉक ऑल्सो, एंड एरियल इन पैराडाइज लॉस्ट इज अ फॉलन एंजल। तो ऑलमोस्ट सभी फेमस लिटरेरी वर्क में एरियल का नाम मेंशन है। तो उसके कई सारे पर्सनालिटीज है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इमेज है वो एक्चुअली टेम्पेस्ट के अकॉर्डिंग ही है। ही वाज अ वाटर बॉर्न, सॉरी, एयर स्पिरिट। आप देख रहे हो कि वो हवा में उड़ रहे हैं, एरियल, राइट? So that is about Ariel, and the name actually, the name actually means lion of God. चलो नेक्स्ट टर्म में आते हैं, एथेना। She was also a goddess. This is the image of Athena, very beautiful statue of goddess Athena. Obviously, Greek myth में आपको मिलेगा एथेना का नाम। तो कौन है एथेना? Actually, the name means Queen of Heaven. Queen of Heaven. एथेना means Queen of Heaven, and इसके जो बर्थ स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। She was born out of the head of Zeus. उसके हेड से वो बना था। कैसे बना था? Zeus swallowed his wife Metis.
And Athena came out of his head when Prometheus opened it. That was the story. Prometheus Unbound. You all have heard this thing, written by Shelley, right? So Zeus swallowed his wife Metis, and इसके result में क्या हुआ कि Athena came out of his head when Prometheus opened Zeus's head. तो Athena बाहर आया, ठीक है. And Athena was a very powerful goddess in Greek mythology because any oath in Greek religion was taken after her. कोई भी oath लेना हो तो सबसे पहले goddess Athena का नाम आता है. So she was such a powerful goddess, and she was also a very important goddess in agriculture, ठीक है. So and Athens was named after her. You all have heard this. So Athens was actually came from the name Athena, the dwelling place of Athena, that is called Athena. एंड एग्रीकल्चर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. बेसिकली कोई भी न्यू क्रॉप जब आप सो करने जाते हो तब क्या होता है कि उसको उस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एथेना का पूजा करना होता है. सो दैट वाज द रूल. शी वाज द गॉड ऑफ शी वाज द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर. शी वाज आल्सो अ गॉडेस जिसका नाम बार बार लिया जाता है टू टेक एनी ओथ. तो वेरी होली एंड प्योर नेम माना जाता है एथेना का नेम, ठीक है. एंड एक्चुअली द नेम मीन्स क्वीन ऑफ हेवन. सो यहाँ पर भी आप देख रहे हो एथेना का जो स्टैचू है यहाँ पर, वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेटेड स्टैचू, गॉडेस एथेना. ओके, तो ये नेक्स्ट में हम आते हैं वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर ग्रीक गॉड बैकस और डायोनिसस. ऑलमोस्ट सेम पर्सनालिटी है दोनों ही, एक ग्रीक में एक रोमन. बैकस और डायोनिसस, एक्चुअली ये जो इमेज है ये डायोनिसस का इमेज, ठीक है, डायोनिसस. एंड यहाँ पर आप देख रहे हो वो कई सारे फ्रूट्स लेकर बैठे हैं एंड यहाँ पर वाइन का एक बॉटल. तो एक्चुअली ही वाज द गॉड ऑफ वाइन एंड रिवेलरी. तो बैकस कौन है? बैकस एक्चुअली रोमन गॉड ऑफ वाइन. ओके, एंड बैकस वाज द सन ऑफ ज्यूस एंड सीमेल. अगर डायोनिसस की हम बात करें, सो डायोनिसस इज ए ग्रीक गॉड. सो डायोनिसस नेम का मीनिंग है, द नेम मीन्स लेम गॉड. डायोनिसस जो नेम है इस नाम का मीनिंग है लेम गॉड. तो डायोनिसस इज इन ग्रीक मिथ एंड बैकस इज इन रोमन मिथ, बट बात सेम ही है, दोनों ही है गॉड ऑफ वाइन एंड रेवलरी. एंड डायोनिसस इज ऑल्सो द गॉड ऑफ फर्टिलिटी. फर्टिलिटी, रेवलरी एंड वाइन तीनों चीज को रिप्रेजेंट करता है डायोनिसस. अब बैकस की बर्थ का क्या स्टोरी है? अकॉर्डिंग टू रोमन मिथोलॉजी, सीमेल वाज बर्न्ड टू एशेस बाय द थंडर ऑफ ज्यूस, and when she was burned to ashes, Zeus took her unborn child and placed him in his thigh. तो वहां से बर्थ हुआ था बैकस का. एंड बैकस was raised by two nymphs. बैकस और डायनिसस was raised by two nymphs, ऐसा माना जाता है. तो गॉड ऑफ रेवलरी, वाइन एंड डायोनिशस के ऊपर फेस्टिवल्स भी है, डायोनिशियन फेस्टिवल. सो जहां पर जहां से एक्चुअली कार्निवलिस का कॉन्सेप्ट लिया था मिखाइल बाख्तिन ने, राइट, कार्निवलिस. सो दिस वाज एक्चुअली द सेंटर पार्ट ऑफ कार्निवल जहां पर ये एक रेवलरी होता था, ठीक है. तो कार्निवलिस की वॉल नो, आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड दिस टर्म इन लिटरेरी थ्योरी क्लास. Okay, so that is about Bacchus or Dionysus. Bacchus was the Roman god of wine and Dionysus was the Greek god of wine, revelry and fertility. Okay, next में हम आते हैं, that is Belial. यहाँ पर आप इमेज देख रहे हो, बहुत ही हॉरिबल इमेज है बेलियाल का. ही वॉज ऑल्सो अ मॉन्स्टर, ठीक है. बेलियाल की भी कई सारे पर्सनालिटी है. बेसिकली इस नेम का जो मीनिंग है, द मीनिंग इज एक्चुअली वॉर्थलेस. बेलियाल मीन्स वॉर्थलेस. Okay, and he was described as an opponent of Christ. Christ जो purity का representative है, उसके opposite में devil है Belial, and he was it was often considered as another name of Satan. ये भी माना जाता है, but Belial एक separate personality है. In other source, he was the official lawyer of the devils. तो बेलियाल का ये पोस्ट है, he was the lawyer of the devils. That is why he was the opponent of Christ. Okay, and Paradise Lost portrays Belial as a lewd spirit who loves vice. हमेशा vice के साथ, corruption के साथ associated है बेलियाल का नाम है. That is why he was a worthless man. Okay, the name actually means worthless. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, he was a monster like figure.
जो कि मतलब हिल फायर का रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ही वाज एक्चुअली इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, कि वो एक लॉयर है, वो डेविल का लॉयर, ठीक है। सो दैट इज अबाउट बेलियर। नेक्स्ट में हम आते हैं, दैट इज बेलोना। बेलोना इज अ वेरी पॉपुलर नेम, मैकबेथ में आपने पढ़ा है। मैकबेथ वाज डिस्क्राइब्ड एज बेलोनाज ब्राइडग्रूम। एकदम स्टार्टिंग में ही प्ले का ये बताया गया है। क्यों बताया गया है बेलोनाज ब्राइडग्रूम? बिकॉज मैकबेथ शोड हिज वैलर एंड करेज इन वॉर। ओके, ही वाज अ वैलिएंट सोल्जर, तो उसके हीरोइज्म के लिए उसको कहा गया है बेलोनाज ब्राइडग्रूम। अब ये बेलोना है कौन? बेलोना, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हो, शी वॉज एक्चुअली अ गॉडेस, बट वो किसका गॉडेस है? वो वार का गॉडेस है। आप देख रहे हो उसके हाथ में शील्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी एक कुछ वेपन है उसके हाथ में। सो शी वाज द गॉडेस ऑफ वार एक्चुअली, दैट इज व्हाई बेलोनास ब्राइडग्रूम। ओके, so actually she was an Italian goddess of war. इटालियन मिथ में उसका नाम है। एक्चुअली बेलोना नेम का ही मीनिंग है war. The name Bellona means war, and she was an Italian goddess of war. She was actually the wife or sister of Mars. Wife और sister दोनों ही बताया गया है different meaning में. And in Bellona's temple, the victorious soldiers held meetings. तो सोल्जर का मीटिंग होता है, जो युद्ध में विजयी होता है, उस सोल्जर्स का मीटिंग होता है बेलोना का टेम्पल। So it was believed that the soldiers who proved their valor and courage in the battlefield, उसके ऊपर बेलोना का आशीर्वाद रहता है। That is why Macbeth was called Bellona's bridegroom. And she was also mentioned in Virgil's Aeneid as goddess of war. Okay, so this is the image of Bellona. Now 10 हो गया, और 5 कैरेक्टर्स और 5 टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में है केन एंड एबल, वेरी वेरी पॉपुलर मिथ केन एंड एबल का। दिस इज द इमेज, यू ऑल नो, ये बाइबल का स्टोरी है केन एंड एबल का। एंड केन वाज एक्चुअली द फर्स्ट मर्डरर माना जाता है। दिस वाज केन एंड दिस वाज एबल। ओके, तो चलो देखते हैं इसका स्टोरी क्या है। दे वर द फर्स्ट चिल्ड्रन ऑफ एडम एंड ईव। एंड केन का जो मतलब इमेज है वो क्या है? केन हैड येलोइश बियर्ड, अ सिंबल ऑफ मर्डरर। तो केन का लुक ही है मर्डरर जैसा। यहाँ पर बियर्ड इस तक से नजर में नहीं आ रहा है, बट यस, उसका चेहरा आप देख सकते हो, वेरी मैस्कुलिन, वेरी बोल्ड फिगर। एंड एक्चुअली उसके मतलब चेहरे में ही एक मर्डरर का लुक है केन का। And Cain was the first murderer who killed his brother Abel. That was the sin committed by Adam and Eve's children. And God marked Cain with a sign, जिसको mark of Cain कहा जाता है। तो इस पाप करने के कारण, इस मतलब सिन के कारण गॉड ने क्या किया था? केन के ऊपर एक मार्क लगा दिया था, ताकि उसको फर्स्ट मर्डरर के नाम से सब लोग जाने, एंड उससे लोग बच के रहे, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट मार्क एक प्रोवर्ब आ गया, मार्क ऑफ केन, विच मीन्स टू सिग्निफाई अ स्टिग्मा फॉर एन आउटलॉ। किसी पर्सन को आउटलॉ मानना, या फिर किसी पर्सन किसी भी चीज को स्टिग्मेटाइज कर देना, ठीक है, किसी को ब्रांड कर देना एज इविल और समथिंग दैट इज बैंड, तो इसको मार्क ऑफ केन कहा जाता है। दैट वाज आल्सो अ प्रोवर्ब यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो वो यही मिथ से आए, केन एंड एबल के मिथ से ही वो आए, ठीक है। So that is about Cain and Abel. Abel was a very innocent boy जिसको केन ने मर्डर किया था, एंड केन was actually the murderer. Okay, तो ये स्टोरी है केन एंड एबल का। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कैलियोपे। वेरी फेमस नेम आपने सुना होगा लिटरेचर में, कैलियोपे। यहाँ पर आप देख रहे हो, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, एंड शी वाज एक्चुअली अ म्यूज। 9 म्यूजेस के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। सो शी वाज एक्चुअली द म्यूज कैलियोपे। एंड वो किसका म्यूज है? वो पोएट्री का म्यूज है, म्यूज ऑफ एपिक और हीरोइक पोएट्री, कैलियोपे। ओके, एंड द नेम मीन्स ब्यूटीफुल वॉइस। ब्यूटीफुल वॉइस, कैलियोपे मीन्स ब्यूटीफुल वॉइस। शी वाज द डॉटर ऑफ ज्यूस एंड नेमोसाइन। ज्यूस एंड नेमोसाइन का वो बेटी है। शी होल्ड्स अ लॉरेल क्राउन। के पास जो क्राउन है वो लॉरेल क्राउन है। यहाँ पर इमेज शायद दिख नहीं रहा। तो लॉरेल क्राउन मतलब लॉरेल लीव्स, दैट वाज एक्चुअली यूज्ड टू कांग्रेचुलेट समवन, जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ काम किया है। तो जनरली अच्छे पोएट्स को लॉरियल लीव्स दिया जाता है। सो लॉरियल क्राउन वो होल्ड कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। सो शी वाज द म्यूज ऑफ एपिक और हीरोइक पोएट।
ओके, नेक्स्ट टर्न पे हम आते हैं सेंट सिसिलिया, सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, ड्राइडन ने लिखा था, राइट। तो सिसिलिया है कौन बेसिकली? सेंट सिसिलिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमेज देख रहे हो, सिसिलिया इज सिटिंग हियर, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंट and her story was told by the second nun in the Canterbury Tales. Very important information. Canterbury Tales में second nun जो story कह रहा है, that story is about Saint Cecilia. Dryden also mentioned her in a separate work, and basically Cecilia means blind. Cecilia means blind. यहाँ पर आप इमेज में भी देख रहे हो, Cecilia means blind. She was the daughter of blind parents actually. वो खुद ब्लाइंड थे या नहीं थे, ये पता नहीं, बट वो एक ब्लाइंड पेरेंट्स का डॉटर थे एंड उनके नाम का मीनिंग था ब्लाइंड। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस दैट her parents wanted her to marry Valerian. वैलेरियन वाज अ हैंडसम यूथ जिसके साथ उनके मैरिज का प्लान हो रहा था। तो सिसिलिया कन्वर्टेड वैलेरियन टू क्रिश्चियनिटी एंड हिज ब्रदर टिबर्टियस आल्सो कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। Now at that time converting to Christianity was also a kind of sin, जो कि मतलब क्रिश्चियन नहीं थे, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी में, तो ये जो पेगन रिलीजियन है उसमें ये माना नहीं जाता था। दैट इज वाई ये जो दोनों भाई है, टिबर्टियस एंड ऑल्सो वैलेरियन, बोथ वर एग्जीक्यूटेड बाय द अथॉरिटी। एंड पता चला है कि इसको कन्वर्ट किया किसने? कन्वर्ट किया सिसिलिया ने। तो सिसिलिया वाज थ्रोन इनटू बॉइल्ड वाटर, but she was a ardent believer in God, that is why she came out alive. उसको कुछ नहीं हुआ। Then what happens? She was injured thrice in her breast and neck, and finally she died after 3 days. And she was considered as a martyr, and उनको saint घोषित किया गया, canonized किया गया as a saint. So that is why Saint Cecilia. Okay. So song for Saint Cecilia's Day, that was also work by John Wright. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कॉर्पस क्रिस्टी। कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल है, इसका नेम आपने सुना होगा मिस्ट्री मिराकल एंड मोरालिटी प्ले, right? When you have read this thing, mystery miracle morality play, that was the early phase of the development of drama. तो मिस्ट्री मिराकल प्ले में आपने सुना होगा कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल का नाम। तो कॉर्पस क्रिस्टी, यहाँ पर आप इमेज देख रहे हो, दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल कॉर्पस क्रिस्टी। नाउ द नेम कॉर्पस क्रिस्टी एक्चुअली मीन्स बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट्स बॉडी। ओके, it was a medieval Christian feast, and this festival was actually first suggested by Saint Juliana and Pope Urban the Fourth. इन दोनों ने इसको सजेस्ट किया था। Two colleges in Oxford and Cambridge are named after this feast. So Corpus Christi College, आपने नाम भी सुना होगा, Corpus Christi एक कॉलेज भी है, right? So actually it was a medieval Christian festival में एक बड़ा feast organize किया जाता है. It was actually a feast, Christian feast, and it was first suggested by Saint Juliana and Pope Urban the Fourth. ओके, लास्ट आज की क्लास का लास्ट टर्म है सिम्बलिन। सिम्बलिन अ वेरी फेमस प्ले बाय शेक्सपियर आल्सो। तो सिम्बलिन कौन है? Cymbeline was actually a British king who ruled for 35 years and he was brought up in Rome. तो by rationality, sorry, by nationality वो रोमन थे, but he was actually a British king who ruled for 35 years. He had two sons, Guiderius and Arviragus, दोनों सन थे उनका। शेक्सपियर wrote this play Cymbeline about this king. Okay, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, this is Cymbeline actually. Okay. So yes, so that is about the important terms। और भी कई सारे mythological characters है, मैं बीच बीच में आपके लिए इस टाइप का सेशंस लगाती रहूंगी, ठीक है। तो मैं उसी mythological characters को डिस्कस कर रही हूँ जिसके बारे में आप लिटरेचर में पढ़ते हो, आपने कुछ एल्यूशंस पाया होगा किसी ना किसी टाइम में। So I'm just trying to give you a brief idea about the myth and who this person was. Okay, so I hope you are enjoying this series. So please आप वीडियो को लाइक शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना। Okay, so that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लो to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners. So thank you all. Have a nice day.